Hello, ladies and gentlemen. It's me, Abdurrahman Shabazz Khan. Welcome back to the Sports Side Football दीवाने और आज हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है शाहजेब खान भाई ने. तो वेलकम टू द शो शाहजेब भाई, क्या हाल चाल? Thank you so much for having me here again. And Alhamdulillah, सब ठीक ठाक. आप सुनाएं, बताइए इधर. अल्हम्दुलिल्लाह. So first of all, congratulations. आपने जो कल रिसेंटली इस्लामाबाद सिटी फुटबॉल क्लब लॉन्च किया है उसके लिए, और इससे पहले आपका कराची सिटी भी था, अब्दुल एफसी भी था. जब लास्ट पॉडकास्ट में आप आए थे तो मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि सब कुछ आप ही करना चाहते हैं लगता है, तो आपने कहा था कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ. उसके बाद इस्लामाबाद क्लब एक फाउंड करना, जो कि आपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लिखा था कि 4 साल लगे थे. तो अगर आप इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं. जैसे लास्ट टाइम आपने आई थिंक सुना था, डेफिनेटली आई एम ऑल इनटू फुटबॉल एंड मैं क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ. And after the last podcast of, I think, not just Islamabad City, we've also started working on the Grassroots Foundation, which itself is the biggest football project in the history of Pakistan. So obviously, I'm really proud to be working on multiple forums for multiple organizations. And yeah, kya kehte hain, I think I'm also blessed to have amazing partners and to be given such chances कि हम लोग इस तरह काम कर पाएं. So yes, Islamabad City, I am really happy and proud to announce that we've finally launched it and we're going to start in June. I think we've been talking about it since the last year or so, but obviously I think it had to be on point. Jaise, I mean, a lot of people were speculating that we're just opening it for the sake of it, but aisa nahi hai. Me and Adil bhai have had a lot of conversations over it. We've thought about a lot of partners as well, but it wasn't really adding up. So we thought that this is now the right time. Now we have all of the pieces together, and I think this is probably the best team that we could possibly get, and it ticks all the boxes, which is why I think we are really, really excited. And I think जब जैसे आपने देखा, when we launched, I think it literally blew the internet. मतलब इतना अच्छा response हमें literally किसी चीज पे नहीं आया. It was just a logo, it was nothing else, but उसकी reach, उसके shares, I mean, with the people we have on board for it, I think everybody is really excited. And although we did take Karachi City to places, but Islamabad City is even going to break more records with it, because I think having more partners involved has benefited us a lot. And I think with Waleed Javed, with Abdullah Shah and Saud, I think it is a massive team. And I think हम लोग काफी बड़े बड़े goals हैं हमारे with Islamabad. And another reason is obviously when you have two people and we have other projects as well, we can't really fully invest into it. So that is why we thought that, it's better to add in a lot of partners. And for the sake of the project running in a better way, it would suit us more to have a lot of people. And इसमें हमने divide किया हुआ है कि, what, ये आपका domain है, ये आपका domain है. So we know what we have to do. And हम लोग अपने deliverables कर लेते हैं एक दूसरे की. There's a lot of mutual respect. I think we are all on the same page. हम लोग काफी respect करते हैं. And जो मेरा main role था इस पूरे project में वो यही था, to get all of us together. So this was the hard bit, but now that we have it, I think we are really, really excited. And inshallah, you'll see in the upcoming weeks that हम लोग अपना चीज बहुत aggressively start करेंगे. Yeah, so Shazib bhai, my next question was related to this ke, like you are running Karachi City and ग्रासरूट फाउंडेशन भी है, तो ये सब मैनेज कैसे होगा, और उसका आपने आंसर किया कि इतने सारे पार्टनर्स भी हैं. बट वी हैव सीन कि एक प्रोजेक्ट में अगर इतने सारे पार्टनर्स होते हैं तो एक चीज को मैनेज करना, इसको रन करना, क्योंकि अभी तो ये लॉन्च हुई है. और अगर हम कराची सिटी की बात करते हैं, यू एंड अदील रिस्की भाई रनिंग इट, और अदील भाई पाकिस्तान वुमेन टीम के कोच भी हैं. और फिर उसके बाद अगर हम आपकी ग्रासरूट फाउंडेशन की बात करते हैं, आप हैं, सऊद भाई हैं, और बाकी वलीद भाई भी वहाँ पे. अगर हम इस्लामाबाद सिटी की बात करते हैं, आपके साथ अब्दुल्ला शाह हैं, वलीद जावेद हैं, अदील भाई हैं, सऊद हैं, आप खुद हैं. तो ये सब इतने आप लोग कैसे इसको रन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स में किस तरह करेंगे, और आप अकेले किस तरह मैनेज करेंगे कराची सिटी और इस्लामाबाद के दरमियान? क्योंकि अगर आप कराची होते हैं, वहाँ के प्लेयर्स को डेवलप करना, और इस्लामाबाद में इटसेल्फ अगर आप एक टीम दोबारा से एक क्लब खड़ा करें तो आपको उसके लिए भी चाहिए. क्योंकि अगर हम पाकिस्तान फुटबॉल में प्लेयर्स की बात करते हैं जो कि डेवलप्ड प्लेयर है, मैं अंडर डेवलप्ड प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, जो डेवलप्ड प्लेयर है वो कम है, और वो हम देखते हैं कि कभी एक मोस्टली हर कोई एक ना एक दूसरे क्लब से खेल ही रहा होता है. तो इन चीजों को सबसे पहले जो स्टार्टिंग चीज होती है, आप लोग उस चीज को कैसे लेके चलें? देखिए, I think if you look at it, Adil bhai himself is in Canada right now and he's working for Toronto United. I think even the last year or so he was very busy with the women's team. I think वही वाली बात है, having a very good understanding.
पार्टनरशिप सिर्फ बोली नहीं जाती, हम लोगों ने निभाई भी है। सो आई थिंक द अंडरस्टैंडिंग मी एंड अदील भाई हैव इज लिटरली, मतलब आई थिंक वो मेरे बड़े भाई जैसे, लाइक लिटरली वो मेरे, मतलब आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड मेरे लिए समझे एक फादरली फिगर ही है। वो बड़ा मेरा ख्याल रखते हैं, ऑल्दो मेरा बिल्कुल ऑपोजिट स्टाइल है काम करने का, लेकिन हमारी ऑनेस्टली आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमारे इन 4 साल में कभी भी कोई लड़ाई या इस तरह की मिसएग्रीमेंट, किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट हुई नहीं है। वी ऑलवेज रिस्पेक्टेड ईच अदर्स ओपिनियन एंड जब मुझे लीड लेनी होती है मैं लेता हूँ, जब उनको लेनी है तो वो लेता हूँ। रही बात इस्लामाबाद की, तो देयर इज अ पॉइंट के देयर इज अ रीजन व्हाई वी हैव 2 पार्टनर्स फ्रॉम इस्लामाबाद वर्किंग with us in this project. So that is where Waleed and Abdullah, they come in. So obviously, ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा मैं चीज़ों में नहीं घुसूंगा. We are all partners. We share equity in this project. So ऐसा कोई इस तरह का इशू नहीं. I'm on the go mostly as well. I'm traveling a lot. तो क्या कहते हैं, मैं इधर उधर होता रहता हूँ. So that's not a big deal. So यही है कि I think इस तरह का कोई इशू नहीं होगा. And I think this is a massive project. And हमारी बड़ी similar सोच है कि इतना ज़्यादा कमाओ कि सबको अगर जितने जितने हिस्से मिले उसी में खुश हो जाओ, rather than सारा मैं अपने लिए कमाऊं. तो वही बात है. वलीद भाई is a partner in the Grassroots Foundation with me and Saud as well. Adil bhai is with us as well, and Abdullah mashallah is currently playing and he has a lot of sources of income. So हमारा कोई वो purpose है ही नहीं. We obviously cleared all of those things that what, this is how it will be. We know for a fact अगर सिटी ग्रुप को हम लेके चले, me and Adil भाई know, and बहुत लोग आपके सामने ही बोलते होंगे, there is not a single academy जो 2 सिटीज में ऑपरेट करें और अच्छी तरह ऑपरेट करें. मतलब कोशिश बहुत लोगों ने की है, मतलब स्मर्ट्स भी वहाँ गई, फुटबॉल फैक्ट्री भी वहाँ गई. नॉट सेइंग दे वर लॉस्ट, बट मतलब इस तरह का ये नहीं कहूँगा कि वो फ्लॉप हुए थे, लेकिन उस लेवल का काम नहीं हो पाया. तो इसलिए इस्लामाबाद सिटी में हमने कम्प्लीटली आगे में ही इस्लामाबाद वालों को रोक रखा है, एंड हम लोग यहाँ पे थोड़ा साइड रोल लेंगे. So this is our thought behind it. Although no disrespect, I think Smurfs is the biggest academy in Islamabad. जैसे Kaka is in Lahore and Fazan Bhai itself, उनका काम माशाल्लाह, we know how good he is with Legacy and Football Factory. तो सब अच्छे काम कर रहे हैं and hopefully I think हम लोग भी आ रहे हैं. And I think इतने बच्चे हैं फुटबॉल में, I think there is room for 10 more academies to come and flourish. So I think ये कोई competition वाली बात ही नहीं है. सब चीजें I'm pretty sure will add up and सब लोग खुशी से काम कर सकते हैं. आपने कहा कि सब लोग खुशी से काम कर सकते हैं और भी एकेडमीज आ सकती हैं और भी क्लब्स आ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा लेगेसी की, जो कि हमने देखा था कि कुछ सालों पहले आई थी. और फिर उसमें से जो उनके मैं मेन लोगों में से अगर कोई बात करूं, वलीद जावेद की और साथ में अब्दुल्ला शाह की, उन्होंने आपको ज्वाइन किया है. और जो मुझे सुनने को मिला है, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मोस्टली जो उधर के प्लेयर्स हैं वो सब उनको छोड़ चुके हैं एंड दे आर थिंकिंग या दे हैव मूव टू इस्लामाबाद सिटी क्लब. तो ये आप इस चीज को किस तरह देखते हैं? क्योंकि अगर एक क्लब जो एक टीम जो कुछ साल पहले आई, उसको कुछ प्लेयर्स ने जो कि ऑलरेडी डेवलप प्लेयर्स थे, उन्होंने ज्वाइन किया और उसके लिए काम किया, और फिर अब वो एक नया क्लब आया उसके लिए काम किया. तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल में हम जो चाहते हैं कि हमारी ना कोई लीग हो रही है ना कुछ हो रहा है, ये क्लब सिर्फ अभी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि एज सच पाकिस्तान फुटबॉल में पाकिस्तान में उस तरह की फुटबॉल नहीं होगी. तो अगर हम डेवलपमेंट की तरफ से जाते हैं, तो अगर एक के बाद अगर कोई, चले आपके बाद किसी, आपने खुद ही कहा कि और क्लब्स आ सकते हैं, अगर कोई और क्लब आता है और यही आपकी टीम वहां चली जाती है, ये जो साथ में आपके कुछ पार्टनर्स वगैरह हैं, तो हाउ विल पाकिस्तान फुटबॉल ग्रो? आई थिंक कंपटीशन से तो ग्रोथ ज़्यादा होती है अगर और लोग आए. देखें, पहली बात तो ये होती है कि आपके सिस्टम्स इतने अगर स्ट्रांग होंगे तो आपके प्लेयर्स नहीं जाएंगे. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डू नो सर्टनली कि थोड़े प्लेयर्स का इशू हुआ है लेगेसी के हवाले से, बट अगेन हमारे तो अभी उनके एज ग्रुप का कोई इस तरीके का इस्लामाबाद सिटी के बैनर में तो कोई अभी तक टॉक्स ही नहीं हुई. ऑब्वियसली बात है कि Waleed Javed is a huge name. He is a big coach, and he is the reason why they were there. So that's what I always say. It's not the organization; it's the people behind it. So there is no legacy without Waleed Javed. So obviously, if Waleed Javed is taking a switch, so obviously वहाँ के players obviously वो legacy हो Islamabad City, उनको वो दोनों नहीं चाहिए, उनको Waleed Javed चाहिए. So obviously there is a slight obviously dynamic shift. And again, I think I take this very positively. अब देखें, हमारी अभी तक किसी से उस तरीके से बात ही नहीं हुई. हमें तो अभी तक एग्जैक्टली हमारे प्रोग्राम्स का पता ही नहीं. मतलब वी विल ऑब्वियसली सी आवर फाइनेंसेस, वी विल सी इफ वी कैन डू दैट. एंड आई वुड लाइक टू अपलॉड फैजान फॉर द वर्क ही इज डन विद लेगेसी. ही हैज पुट इन अ लॉट ऑफ मनी. ही हैज, मतलब वो फ्री प्रोग्राम था उनका,
एंड उन्होंने बच्चों के लिए बहुत किया है, उनको मतलब बेस्ट फैसिलिटीज दी हैं. And I think it would actually be very sad and it would be unfair to them. And I think if I was in their place, I would actually be very upset about it. But again, these things happen. ये बड़ी नेचुरल चीज़ है. I've had a lot of setbacks. मतलब फुटसॉल में आप देखें मेरा प्लेयर कभी फोर्सा जा रहा है, कभी आ रहा है, कहीं यहाँ जा रहा है. So this is natural. This is something that will happen. I think they have bigger plans and वो आपको अगर लग रहा है वो एक legacy गई है तो वो दो और legacy बना देंगे. I'm pretty sure they will. So again, my intention was never to take anybody's kids. And honestly speaking, Legacy is a project in which he puts in money. So Football Factory is actually the model that we are trying to replicate with Islamabad City. It's a pay-to-play model rather than a free model like Coco. So technically speaking, for Islamabad City, I would rather benefit more from kids coming from Legacy kids coming in from Football Factory rather than Legacy. Although we will, they can grassroots foundation. That is where we are trying to accommodate the kids. और वलीद भाई चाह रहे हैं कि although he is one of our partner over here, but he wants kids to coach. क्योंकि कोच है ही नहीं अगर वो फील्ड पे काम ना करे. So we are figuring it out. We want to accommodate everyone, basically the talented ones. So we will give them opportunities. We will open doors. वो किसी भी बैनर में हो सकता है. क्या पता हम नया क्लब बना दें. क्योंकि इस्लामाबाद सिटी का तो मॉडल ही अलग है. क्या पता ग्रास रूट में वो एज ब्रैकेट में ना आ रहे. तो जैसे सीधी बात है, जो वलीद भाई बोलेंगे वो करेंगे. उस पर तो कोई दो राय नहीं है. बाकी अभी तक हम लोग इतने डिस्कशंस भी नहीं गए. हम सबके अलग अलग एक्सपर्टीज हैं. मतलब इफ यू लुक एट वलीद भाई एंड यू लुक एट अदील भाई, देयर द फुटबॉल गॉड्स. आई थिंक काम करने में फुटबॉल के चीजें हम उन पे छोड़ें. Saud is where Saud and me are the ones that are looking for sponsorships. We are looking at the government relations, ये सारी चीजें, partnerships और सारा operations का काम. And Abdullah is obviously main, like, you know, he's going to be the face of the club. I think he's इस्लामाबाद born, इस्लामाबाद का स्टार है. तो मार्केटिंग ऑब्वियसली सब लोग उसको फेस वैल्यू देते हैं. लोग पीपल लुक अप टू हिम. सो ही इज एन एसेट एंड ही उसने अब कमाना ही जब फुटबॉल से. आई थिंक इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू ग्रो फ्रॉम हियर एज वेल. एंड आई जस्ट जनरली फील, देखें, इट वाज एन अनटैप्ड मार्केट. इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. आई मीन if Abdullah and Waleed were given equity or like partnership or a very good package over there, शायद ये दिन देखने को ही नहीं मिलता. और शायद अगर मेरे से अच्छा ऑफर उनको कोई और देगा, मैं दरवाजा खोलूंगा, गले मिलूंगा, बोलूंगा बिस्मिल्लाह. चने आपने बिस्मिल्लाह की तो बात कर ली, लेकिन एक आपने जब बात की ना कि प्लेयर्स को वलीद जावेद चाहिए, प्लेयर्स को एक सर्टेन क्लब नहीं चाहिए, यही बात की आपने स्टार्ट. फिर एक तरफ आप लोग एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं, XYZ इस्लामाबाद हो गया, लेगेसी हो गया, कराची सिटी हो गया, जो भी एक किस्म का सिस्टम आता है. As a stakeholder of Pakistan football, what do you think कि there should be a certain things जो इन क्लब्स को empower करनी चाहिए कि अगर कहीं का प्लेयर. माजरत आपकी बात काट रहा हूँ. What are stakeholders? Stakeholders means you work for Pakistan football. You मतलब आप के अंडर you are the founder of two clubs. Yeah, so you are the stakeholder. Okay, I am a stakeholder. पाकिस्तान में कितने स्टेकहोल्डर हैं? सामने तो बहुत स्टेक होल्डर्स हैं. बताएं मुझे. I would like to know. मेरे हिसाब से I can count them on my fingers. कौन है? आप बताएं, आपकी नजर में कौन है? मेरी नजर में तो यही है कि जो क्लब्स के फाउंडर्स हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स थे. सर मेरी नजरों में तो आजकल जो लोग इंटरनेट पे गालियां में दे रहे होते हैं वो भी स्टेक होल्डर बने. वो अब आप हर किसी को तो नहीं उस तरह से स्टेक होल्डर्स कह सकते, क्योंकि स्टेक होल्डर्स, देखिए मैं टेल यू, स्टेक होल्डर्स जो एक्चुअली पाकिस्तान फुटबॉल के लिए काम कर रहे हैं ना, वो लिटरली आपके फिंगर टिप्स में. मैं नाम नहीं लूंगा, ऑब्वियसली मेरी चीजें नामों में घुस जाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है एंड ये काफी डेंजरस और गलत दौर है. चीजें बड़ी ट्रिकी होती है इसमें. मैं एक चीज ला रहा हूँ, ऑब्वियसली डैमेजेस होंगे लोगों को, मतलब कोलैटरल डैमेज वाली बात है. इफ आई एम कमिंग इन, इफ आई एम मेकिंग अ क्लब, तो आपके हिसाब से मैं स्टेक होल्डर को बोलूं नहीं यार अपने प्लेयर अपने पास रखो, दिस इज बैड फॉर पाकिस्तान फुटबॉल. व्हाट इज पाकिस्तान फुटबॉल? प्लीज ऑनेस्टली टेल मी. एक हारून हामिद का गोल लग गया, पाकिस्तान फुटबॉल इज अमेजिंग. हमारी कोई टूर्नामेंट्स नहीं, हमारी लड़कियों ने एक साल में फुटबॉल नहीं खेली, कोई लोकल लीग नहीं है, 4 अकेडमी है, 2 कोचेस हैं, एक को चले जाते तो ऐसा लग जाता है कि दुनिया खत्म हो गई. फुटबॉल है ही नहीं. हम लोग काम कर रहे हैं एंड इसमें आई थिंक हम थोड़ा अपने लिए भी काम कर रहे हैं. इट्स ऑनेस्टली आई एम नॉट वर्किंग फॉर पाकिस्तान फुटबॉल, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ. And when I work for myself, I am benefiting Pakistan football in the process. मुझे फेडरेशन पैसे तो नहीं दे रही ना. मैं आपको बोल देता हूँ, आप स्टेक होल्डर हैं, जरा अपनी जेब से पैसे लगाएं फुटबॉल पे. कल से
इनसाइड फुटबॉल वाले भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे भाई हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत पेजेस है, FPBC वाले बहुत काम कर रहे हैं। तो सर स्टेक होल्डर्स जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं और जो इन द सीन्स होते हैं, उनके बड़े अलग रोल्स होते हैं, एंड वी फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एज वेल। मतलब आप एक बात बताए ना, इफ यू आर टॉकिंग टू मी अबाउट वलीद हैज जॉइंड अस, द किड्स से वलीद भाई वांट टू कम विद यू, सो वलीद भाई आंसर अकॉर्डिंग टू यू शुड बी नहीं नहीं बेटा उधर रुको, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये पाकिस्तान फुटबॉल का फायदा है। मेरा सवाल बिल्कुल ये नहीं, मेरा सवाल अलग था। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका एक क्लब है और आप एज अ फाउंडर ऑफ क्लब Yeah. आप एक रन कर रहे हैं, जी आपने एक क्लब बनाया है, तो जी आप उसमें क्या आपके इनिशिएटिव्स हैं, क्या काम करेंगे कि अगर कोई प्लेयर आता भी है उसके पास बाकी कोचेस भी हों, सिर्फ उसको ये ना हो कि आई एम हियर जस्ट फॉर द वन पर्सन, आई एम हियर फॉर द No, but एनवायरमेंट, that's आई एम। wrong. He is the one person they want. बाकी एक अच्छा वो तो चलो अभी है ना, वो तो अभी है, आपके एनवायरमेंट पैदा करेंगे कि सर एक वो बात सिर्फ वन पर्सन ना हो ना। बताइए, I'll tell you one. पाकिस्तान में लास्ट कोचिंग कोर्सेज कब हुआ मुझे बताओ। सर ये हमने मेरे ख्याल से लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में कोई कोचिंग कोर्सेज है ही नहीं। भाई आप बताएं मुझे बी लाइसेंस कोचेस दें पूरे मुल्क में कितने, ये तो बहुत दूर की है ही नहीं। एंड विद इस्लामाबाद सिटी इट इज ऑल अबाउट एक्सीलेंस। वी हमारे एक बात बताऊं, अपार्ट फ्रॉम द वंस वी हैव, अदील भाई इज माशाल्लाह ने लाइसेंस, आई एम अ बी लाइसेंस माय सेल्फ, वलीद भाई इज अ level 3 B license himself, so I think this is a dream team. We would have Sir Ehsan on board as well, goalkeeping B and UFA B. We are in talks with a very big coach as well. So we are going all in, और हम लोग क्वालिफाइड लोग ही लाएंगे। अगर वो क्वालिफाइड लोग हम नहीं दे पाएंगे उन बच्चों को, तो फिर जो वलीद साहब हैं वलीद साहब ही हैं, कोचेस में बना तो नहीं सकता ना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ना वलीद साहब, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन आपने जैसे स्टार्ट में भी बात की थी कि न्यू कोचेस पे डेवलपमेंट पे भी आप लोग काम करें, तो उसके लिए व्हाट्स योर प्रोसेस, दैट वाज अच्छा, I'll tell you basically हमने I'll tell you a funny story. I think बहुत सारे कोचेस हैं आजकल ना, FA की साइट पे जाए 6-8 फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं, सही है, वो 10-10 मिनट में टक 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 फॉरवर्ड करो हो जाते हैं। उस तरह के मेरे पास वो तो मैंने भी किया था। एग्जैक्टली। तो आजकल के हम लोग जो है ना सोशल मीडिया पे लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट करने के लिए वो कर लेते हैं। तो वो तो हमने अपने हर कोचेस की एक रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि FA के 6-7 वो आपको कोर्सेज कर लें, लेकिन दैट वुड बी अ लैक। जब तक C लाइसेंस B लाइसेंसेस नहीं होंगे कोचेस डेवलप नहीं। तो अच्छा, हम लास्ट में आ जाते हैं, आपके सिटी ग्रुप पे बात करेंगे। व्हाट्स द मेन एम फॉर सिटी ग्रुप? कराची सिटी आ गया, इस्लामाबाद सिटी क्लब आ गया, अब आगे क्या है? 1 जनवरी 2026 लाहौर सिटी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो अब हर जगह फैलेंगे नहीं फैलेंगे तब जब हमें लगता है कि हम लोग काम सही कर पाएंगे, जब हमारे पास सही टीम होगी, जब हम अपनी उस चीज को, अपने ब्रांड को और कस्टमर्स को वो चीज दे पाएंगे जिससे हम कस्टमर लॉयल्टी ले पाए और जिससे हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअली वो काम कर। अच्छा, तो लास्ट सवाल है जो कि हम अक्सर मैं पॉडकास्ट पे करता हूँ, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बाकी स्पोर्ट्स भी देखती है, तो अगर जो फुटबॉल नहीं देखता और वो जब वो फुटबॉल कवर करने को आता है, उसका एक मेन सवाल होता है कि पाकिस्तान फुटबॉल कैसे ग्रो करेगी ग्रास रूट डेवलपमेंट्स पे, क्योंकि ये जो सारे क्लब्स हैं, अगर कोई लीग वगैरह नहीं हो रही, तो ये फुटबॉल की जो ग्रास रूट डेवलपमेंट पे प्लेयर्स के लिए, अगर किसी प्लेयर ने फुटबॉल की तरफ आना है, तो व्हाट आर द मेन बेसिक थिंग्स जो उनको प्रोवाइड होनी चाहिए, कि किस चीज की कमी है पाकिस्तान फुटबॉल में? इट्स अ वेरी सिंपल आंसर टू दिस, आप TGF को ज्वाइन करें एंड इंशाल्लाह आप लोग, I won't be needing to answer you. You'll see in a couple of months the work we're planning to do with all of the grassroots of Pakistan. We are going into every region. We have the best facilities. We have the best grounds. We have the best coaches. We have the best coaching education. We have the best curriculum plan. We have the best diet. We are paying for transport. We are paying for education. And I think this will be a game changer for Pakistan football. Inshallah, and thank you very much for joining Shazib once again. Last बार इंटरव्यू में वॉइस का इशू हो गया था, hopefully इसमें से Hopefully that doesn't happen again. Yeah, hopefully. Thank you so much for your time. It's always a pleasure talking to you. Take care. We need stakeholders like you. Thank you very much, and we need stakeholders like you too. I hope you're not being sarcastic, but thanks a lot. No. Okay. Please. So this Disney tune in के like share subscribe and visit our website dsportsnet.com। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत।